Good evening, everybody. We are watching classification and its different types of features, definition, meaning, scope, example, and after that we are going to discuss in today's lecture canons of classifications or canons of library classification. Okay, then majorly we discussed on 3 points. Classification means what we try to understand, then library classification means what, and then canons, okay, of library classification. Okay, so in this way we can discuss over the 3 major concepts which are the most important, which are given on the blackboard. First one is classification means what, then we saw library classification means what, and after that we are going to see now canons of library classification. Okay, so there are many experts who are or belong to the library information science, library science. They try to explain, they try to formulate different types of library classification, canons of library classifications. So Dr. S.R. Ranganathan also noted some important canons of library classification in the book Prolegomena to Library Classification, which is written in the 1937, and 3 levels canons are given by scientific and systematic way by the by Dr. S.R. Ranganathan. Okay, so we are going to watch all these canons. So before going to forward, it is necessary to understand what is meaning by the canons. Canon is nothing but the rules or code, a format, that is called the canon. Okay, or guideline. So first is given there ideal plane. Okay, in verbal plane, and third one is notational plane. Okay, so 3 levels are given of canons of library classification. We are going to read now. Canons of library classification. We can find at 3 levels all these canons of library classification which are given by Dr. S.R. Ranganathan. First one is ideal plane. This is the first level. Okay, and second one is a verbal plane and notational plane. Notational plane.
So in this way, 3 point of views or 3 levels Dr. S.R. Ranganathan given the canons of library science. Okay. Level. Which are the 3 level? Idea plane is given there, verbal plane is given there, and notational plane is given there. Okay. Now we will discuss one by one. In idea plane, what happened, in which we think about work. In ideal plane, all aspects of the universe of knowledge are analyzed by the structures, dimension, quality, characteristic, kinds of relationship and bond of strain among each item of knowledge. So in this way, in ideal plane, what happen, all the aspects of universe knowledge are considered, like a structure, dimension, quality, characteristic, kinds of relationship and bond of strain and among each atom of knowledge. Okay. All the aspect of universe of knowledge, UK. Okay, I will write in short. Consider. So in this way, which kind of the aspects are come in this category? Structure is there, dimension, quality, characteristics. Okay. Structure, dimension, quality, features, characteristic. Okay, so all these aspects are come under this ideal plane. Okay, then verbal plane, in which you take action or plan. Verbal plane help to decide the type of technology to be used in the scheme of classification. Okay, action or plan is considered here in verbal plane. Plan is to be considered. Okay, what kind of the action you are going to take, what kind of the instrument you are going to use for the classifications, what kind of the decisions you are going to take for implement the classification, for doing the classification. That is called the verbal plane. Okay, means action is most important here. Here aspect is most important. And notational plane, what happened? Notational plane has responsibility of implementing the finding of ideal plane. Okay, the notational plane provide the mechanism in the form of notational system for the helpful and systematic arrangement for existing as well as for unknown subject in scheme for classification. So in this way, in notational planes, what happen, the responsibility of implementing finding of the idea plane or ideal plane. Okay, means decisions. Okay, execute the program like this. Responsibility implementation.
radial plane. Okay, so in this way, whatever finding we can get in ideal plane, we can implement in notational plane. Okay, systematic arrangement for existing as well as unknown subject in scheme for classification. So in this way, classification is conducted, or canons of classification in the library are carried out through these three levels, which are the most important, and all these three levels are given, or planes are described by Dr. S.R. Ranganathan, and that is why it has great importance. Okay, now canons of ideal plane, in which we discuss about the canons for characteristic. Classification is arranging according to their likeness and dislikeness. So already we have learned about that classification done on the basis of different classification, dislikeness and likeness, on the basis of the different principles that recommended certain characteristic to be selected for the process of classification are called canons for characteristic. Okay, so if we are categorized, or if we are classified the entities or elements, documents on the basis of likeness and dislikeness, so on which basis we can do this classification characteristic of canons of characteristic. इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट के जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बेस पे हम लाइकनेस और डिसलाइकनेस के आधार पर ग्रुप्स करते हैं या सब्जेक्ट का डिवाइडेशन करते हैं. इसके लिए कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करता है. रंगनाथन हैज़ गिवन द फॉलोइंग 4 कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. तो रंगनाथन के द्वारा कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 4 दिए गए हैं. उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशंस, कैनन ऑफ रिलेवेंस, कैनन्स ऑफ असर्टेनिटी, कैनन्स ऑफ परमानेंस, कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ रिलेवेंट सीक्वेंस. तो जो ये शब्द हम पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से हमें वो समझ में आ जाता कि कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएट क्या होता है. ओके, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या फीचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट के या किसी भी एंटिटी के, जो हमें क्लासिफिकेशन के लिए यूज करना है, तो उसमें डिफरेंट होना ज़रूरी है, तभी हम वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. और कुछ क्लासिफिकेशन रिलेवेंस के बेस पे किए जाते हैं, और सर्टेनेबिलिटी के बेस पे किए जाते हैं, परमानेंस के बेस पे किए जाते हैं, कंसिस्टेंसी के बेस पे किए जाते हैं, रिलेवेंट सीक्वेंस के बेस पे किए जाते हैं. तो इसके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करते हैं. कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन. In the classroom, the student may be divided into distinct groups. They are boys and girls. डिफरेंशिएट के बेस पे ग्रुप किए जाते हैं, जैसे कि क्लास का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है. ओके, with the help of flowchart we try to understand well. Canon of differentiation. तो डिफरेंशिएशन मतलब दो डिफरेंट उसमें होना जरूरी है. ओके, तो जैसे कि क्लास का एग्जांपल यहाँ पर लिया है, और उसमें बॉयज का एक ग्रुप होता है और गर्ल्स का एक ग्रुप होता है. ऐसे डिवाइडेशन हम करते हैं. ओके, तो कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बेस पे हम कर सकते हैं. ओके, तो दो ग्रुप में विभाजन हम करते हैं, तो उस
इसमें डिफरेंशिएट होना जरूरी है। जब इसमें डिफरेंट नहीं होगा तो हम क्लास में दो ग्रुप कर ही नहीं सकते। ओके, कर सकते हैं जैसे कि क्लेवरनेस के बेस पे, मोस्ट क्लेवरनेस एंड लो क्लेवरनेस के बेस पे कर सकते हैं। बच्चों के सिर्फ बॉयज़ का क्लास होगा या गर्ल्स का क्लास होगा, गर्ल्स स्कूल होगा या बॉयज़ क्लास होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं। ओके, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन जब पॉसिबल होता है तभी हम ऐसा क्लास में दो डिवीजन या दो भाग में बांट सकते हैं या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो विद एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दिस। एग्जांपल के द्वारा है समझ सकते हैं। basis of sex, but we can't we cannot divide the class on the basis of such attributes and student on the positions of face, because all individual of the class share attributes. Okay, so in this way, on the base of sex or gender, we can divide the class between two groups, two class like boys and girls, and others attributes are there, other different are there between the student, but gender is most important factor or characteristic or canons to make the difference between the class into two groups. Okay, so that is why such a kind of canons is most important there. Okay, so are you understood differentiation? Then canons of relevance is what? Canons of relevance stipulate that a characteristic to the terms used as the basis for classification of the universe should be relevant to the purpose of classification. Okay, so canons of relevance stipulate that characteristic to the terms used as the basis for classification of the universe should be relevant for the purpose of classification. Okay, दूसरा जो कैनन यहाँ पर दिया है आइडियल प्लेन का, तो उसमें रिलेवेंस होना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है इन द सेक्शंस ऑफ स्पोर्टमैन इन प्ले फील्ड कलर ब्यूटी वुड बी इररिलेवेंट, बट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस आर रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक। स्पोर्ट का उदाहरण यहाँ पर दिया है। स्पोर्ट में यदि आप किसी को एज अ प्लेयर करके लेते हो तो फिजिकल ब्यूटी इररिलेवेंट टॉपिक है। फिजिकल ब्यूटी पे कभी कोई सिलेक्शन नहीं होता प्लेयर का, चाहे वो फिर क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या किसी भी तरह का कोई स्पोर्ट गेम हो, तो उसमें फिजिकल फिटनेस के बेस पे ही हम वो सिलेक्शन करते हैं सभी गेम में। ये कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं है कि जहाँ पर फिजिकल ब्यूटी के बेस पर ये सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं होता। और फिजिकल ब्यूटी कौन से कंपटीशन में चलती है, वह ब्यूटी कंपटीशन में चलती है, वहाँ पर फिजिकल ब्यूटी कंसिडर किया जाता है। ओके, तो फिजिकल फिटनेस या फिजिकल बॉडी वहाँ पर लेस इम्पोर्टेंट होगी। फिजिकल बॉडी जिसे हम बोलते स्ट्रेंथ बोलते हैं, कहाँ पर, ब्यूटी कंपटीशन में। ओके, इस तरह से जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो कैरेक्टरिस्टिक रिलेवेंस है, उसके बेस पर ये किया जाता है।
तो जैसे कि प्योर साइंस सब्जेक्ट है, तो प्योर साइंस सब्जेक्ट में सोशल साइंस हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये पूरा कॉन्ट्रास्ट है। प्योर साइंस में हम फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, ये सभी प्रकार के जो प्योर साइंस के सब्जेक्ट है वो एक सेक्शन में रख सकते हैं लाइब्रेरी में। और ऐसा हम करते हैं, प्योर साइंस के बीच सभी बुक्स जो साइंस से रिलेटेड है वो हम वहाँ पर रख सकते हैं, ओके। और दूसरा सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में हम जैसे कि जो आता है सोशल साइंस में पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी वगैरह अदर फील्ड के जो सभी प्रकार के सब्जेक्ट है वो उसमें हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ सोशल साइंस। बट वी कांट ऐड द प्योर साइंस इन द सोशल साइंस एज वेल एज वी कांट ऐड सोशल साइंस इन द प्योर साइंस सेक्शंस सब्जेक्ट। तो हम अलग अलग सेक्शन उसमें करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी में होता है। तो रिलेवेंस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्योर साइंस के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है वही हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट वहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते प्योर साइंस में, ओके। और सोशल साइंस के सेक्शन में हम प्योर साइंस के सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रिलेवेंस वहाँ पर नहीं, एक दूसरे को इररिलेवेंस है, ओके। और फिर रिलेवेंस सब्जेक्ट प्योर साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो सब प्योर साइंस में हम ऐड कर सकते हैं, ओके। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कैनन्स ऑफ रिलेवेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, ओके। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैनन्स ऑफ रिलेवेंस कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ओके। For taking the university of the book, it should need two library reader, just matters language, date of publication and author is relevant. The size, page, print and format are irrelevant, okay. तो यूनिवर्सिटी ऑफ बुक जब यूनिवर्स ऑफ द बुक्स जब हम लेते हैं तो उसमें नीड ऑफ लाइब्रेरी रीडर, सब्जेक्ट मैटर, ये सब मैटर करता है, लेकिन उसकी साइज, पेजेस, प्रिंट, फॉर्मेट ये वहाँ पे इररिलेवेंट हो सकते हैं। Then canon of ascertainability, according to the canons of ascertainability, characteristic use and basis for the classification of the universe should be definite, ascertainable. The classification must have an attribute that is fixed, okay. तो इसमें क्या होता है फिर, यूनिवर्स शुड बी डेफिनेट, डेफिनेट यानी कि क्या, सर्टन उसमें फीचर ऐड होता है और उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया जाता है, ओके। और फिर कैनन्स ऑफ परमानेंस, द कैनन्स ऑफ परमानेंस सेट द कैरेक्टरिस्टिक यूज एज द बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स शुड कंटिन्यू टू बी अनचेंज एंड सो लॉन्ग एज देयर नो चेंज in the purpose of classification, like we classify rat by its species but not on the basis of color, okay. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओके। तो
लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ऐसे फीचर होते हैं कैनन्स ऑफ परमानेंस, यानी कि क्या परमानेंट फैक्टर के फीचर्स हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं और तभी हम वहाँ पर ये कर पाते हैं। परमानेंस फीचर कौन से होते हैं, जैसे कि कोई बुक्स होगा वो परमानेंट सब्जेक्ट का होगा तो उसके बेस पर हम वहाँ पर वो करते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। ओके, और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि रैट बाय इट्स स्पेसिस, स्पेसिस की वजह से हम रैट का क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेस पे अभी कभी इस क्लासिफिकेशन हम नहीं करते। तो परमानेंट जो उसका फीचर्स है, जैसे कि वो बेसिस में कंसिडर होता है, कैटेगराइज होता है, कलर के बेस पे नहीं होता है। तो अलग अलग कलर के रैट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के हो सकते, ब्राउन कलर के रैट हो सकते, वाइट कलर के रैट हो सकते, लेकिन स्पेसीज ए परमानेंट फीचर है, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे कैनन ऑफ परमानेंस कहा जाता है। तो एग्जांपल भी यहाँ पर हमें दिया है, इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी कि क्या, उसमें कंटिन्यूटी होती है, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर करते हैं। ओके, इन स्कीम शुड बी द यूज ऑफ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। ओके, तो ऐसा क्लासिफिकेशन हम कंटिन्यूटी और परमानेंस के बेस पे करते हैं। तो उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी होता है। ओके, तभी हम ये चीज सब वहां पर कर पाते हैं। और फिर कैनन्स ऑफ रिलेवेंट सीक्वेंस, इन दिस टाइप ऑफ सब फॉर्मूला द ऑर्डरिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्टिंग इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ड नॉलेज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो रिलेवेंट सीक्वेंस इसमें आना जरूरी होता है। जब रिलेवेंट सीक्वेंस इसमें होता है तब हम इस तरह का और इस पिक्चर पे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। और फिर इस तरह से हम 4 प्रकार के कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन के जो प्रकार है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिए हैं। और फिर कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन में किस प्रकार के कैटेगराइजेशन आता है, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ एन्यूमरेशन, कैनन ऑफ रिटिसेंस, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, फर्स्ट चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैनन्स the name or meaning of each word in classification system should be determined by the same name used for the class in sequence. Okay, in question with reference or to different classes of the same initial link. तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। in context, in what context we can classify the books. Okay, or we will do the classification. Suppose जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में कि 2 प्रकार के मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन विच इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी, एंड अनदर क्लासिफिकेशन इज natural classification which is done in the nature, by the nature. So the classification which we can do
in the society, it is called the artificial classification, and those are classification is done in the society, that is called the artificial context. Okay, तो सोसाइटी में जो भी ह्यूमन मेड क्लासिफिकेशन होगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होगा, उसे हम आर्टिफिशियल कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पर देखते हैं। और नेचर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन होता है वह नेचुरल कॉन्टेक्स्ट और नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। ओके, ऐसा कभी नहीं होता कि जो क्लासिफिकेशन ह्यूमन द्वारा होता है तो उसे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, और जो क्लासिफिकेशन नेचर द्वारा होता है उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते। तो कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्लासिफिकेशन नेचर में होता है, नेचर के द्वारा होता है, उसे नेचुरल कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, और जो क्लासिफिकेशन ह्यूमन द्वारा सोसाइटी में होता है उसको सोसाइटी या आर्टिफिशियल कॉन्टेक्स्ट हम जोड़ते हैं। ओके, तो उसमें कैटेगराइजेशन करते हैं उसके बेस पर। ओके, so according to canon the name and meaning of each word classification system should be determined। तो इस तरह से नेम और मीनिंग के बेस पर हम क्लासिफिकेशन इसमें कर पाते हैं कॉन्टेक्स्ट के बेस पर। द सेम नेम यूज फॉर द क्लास इन क्वेश्चंस विथ रेफरेंस इन डिफरेंट क्लास ऑफ द सेम इनिशियल लाइन। कभी ऐसा होता है कि सेम नेम अलग अलग क्लास में यूज किए जा सकते हैं विथ रेफरेंस और डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेम इनिशियल लिंक। ओके, लेकिन हर एक का कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर अलग अलग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको समझने की बात ये है कि जैसे कि लाइब्रेरी साइंस ये जो सब्जेक्ट है 21 डिसिप्लिन में यूज किया जाता है। पहले कन्फ्यूजन था, पहले लोग इसको ह्यूमैनिटीज़ में कंसिडर करते थे, फिर बाद में उसको इंटरडिसिप्लिनरी में कंसिडर किया गया। तो एक ही सब्जेक्ट दो डिसिप्लिन में कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ का वो कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे लिया गया। भले अब वो इंटरडिसिप्लिनरी में आता है, लेकिन पहले ह्यूमैनिटी में या सोशल साइंस में वो कंसिडर किया जाता था। ओके, तो यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और उस टाइम सोशल साइंस में वो कंसिडर हुआ था या ह्यूमैनिटीज़ में कंसिडर हुआ था, लेकिन अब वह इंटरडिसिप्लिनरी में कंसिडर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो एक वर्ड एक सब्जेक्ट दो जगह पे यूज हो सकता है। ओके, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है कि जो दो डिसिप्लिन में यूज किए जाते हैं, राइट। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट चेंज होने की वजह से क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है, और क्लासिफिकेशन होता है कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। Canons of currency, the term used in scheme of classification must be the one currently in uses among the expert or users. Currency means those things which are used in current. On the base of these we can do the classifications, right? So on the base of currency means current situation we can do the classification. तो क्लासिफिकेशन करंट बेस पे किया जाता है, जैसे कि जो चीज़ें भूतकाल में होती है, which things occurred in the past at that time we can't carry out in the present, right? And we can also not carry out in the futures. So those things occur in the present, they have their importance, right? So in this way, on the base of currency or current situation we can do the classification. तो इस तरह से करंट सिचुएशन के बेस पे, करेंसी इस कैनन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो प्रेजेंट में मौजूद है उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो पास्ट में था और फ्यूचर में आने वाला है ट्रेंड, और जो पास्ट टेंस था उसके बेस पे या उनका हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, canons of enumerations, to understand the determine the meaning of word in this canon, that
categorical single or class, the hierarchical single subclass has been enumerated. Okay, तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैनन्स ऑफ एन्यूमरेशन के बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि टू अंडरस्टैंड और डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड इन दिस कैनन। तो वर्ड का मीनिंग क्या है और उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, उसके बेस पे भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं। द कैटेगरिकल सिंगल और क्लास, hierarchical single subclass have been enumerated. They should be explained well and on their basis that word should be used. That is, the arrangement of each term in classification system should be determined by enumeration from classes into categories and series. Okay. तो कैनन्स ऑफ एन्यूमरेशंस एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कैनन्स ऑफ रेटिशंस, the term used in scheme of classification should be criticals. Okay, रेटिशंस म्हणजे इसका अर्थ क्या होता है? रेटिसेंस यानी कि नॉट क्रिटिकल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इट शुड बी इजी टू यूज। ओके, सो ऑन द बेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वी कैन डू इजीली क्लासिफिकेशन। तो इस फीचर के बेस पे, इस कैनन के बेस पर हम जो क्लासिफिकेशन है वो इजीली कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ क्रिटिकल संदिग्ध है तो उस क्लासिफिकेशन में हमें दिक्कत होती है। Then canons of succession of characteristic. According to Dr. S.R. Ranganathan, there can be two or more hidden features to classify the universe of knowledge, which can be used sequentially. Three canons have been used to determine the order of these characteristics. तो character of succession में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कुछ कैनन्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कैनन ऑफ कॉनकमिटेंस, ओके, कैनन्स ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन, कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेशन, कैनन्स ऑफ concomitance. For the purpose of classification, which attribute we have selected for classification, the same result should not be obtained, both the attributes should be different. तो कैनन्स ऑफ कॉनकमिटेंस में क्या होता है? सेमनेस के बेस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, तो उसमें डिफरेंशिएशन होना जरूरी होता है। ओके, as the basis of age and date of birth will be the same, then it should not be used due to being the same. Canons of relevant successions. Okay, the characteristics suitable for classification should be commensurate with their objective. When more than one attributes is used for classification, their order should be determined. For example, the decimal classification has chosen geographical area and period as the required characteristic. In the main class history, the users of decimal classification should follow the same characteristic in the same successions.
देन कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंस सक्सेशंस, तो इसमें कंसिस्टेंस आना चाहिए और परमानेंस, और परमानेंट जो फैक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, सीक्वेंस होता है, उसके बेस पर हम एक क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैनन्स और उसके मेन टाइप्स और उसके अंदर सब टाइप्स के जो कैनन्स है उसके बेस पर हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। और एक क्लासिफिकेशन हमें लाइब्रेरी में ही नहीं बल्कि इन द सोसाइटी में भी ये हमें काम में आता है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा। तो थ्योरी के लिए ये अच्छा है पढ़ने के लिए, लेकिन इसका यूज़ हमें एग्ज़ाम में भी होने वाला है और डे टू डे लाइफ में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सभी कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए, और भी कई क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी उसका स्टडी करना है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो पूरा कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए 3 लेवल पे आप उसका स्टडी करना है, जैसे कि आइडियल प्लेन में कौन से कैनन आते हैं उसका स्टडी करना है। और ये समझना बहुत आसान है क्योंकि जो शब्द उसमें आता है कैनन्स फॉर, जैसे कि डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ये फीचर उसमें होता है, उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका आधार लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो प्लेन या जो कैनन्स जिस नाम से है उस नाम के बेस पर वो क्लासिफिकेशन किया जाता है, ऐसा हमें मीनिंग निकालना है, अर्थ निकालना है। और इसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत आसान है। बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड ऑन विच बेस, ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक द क्लासिफिकेशन इज गोइंग ऑन, किस बेस पर, किस फीचर के बेस पर एक क्लासिफिकेशन वहाँ पर होता है। ओके, the introduction to SKOS, SKOS is an RDF। तो SKOS के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, उसका स्टेटस क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसा है। SKOS is an area of work developing specification standard to support the use of knowledge organization system। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है उसके लिए SKOS काम करता है, उसे सपोर्ट करने के लिए, such as a theory, classification scheme, subject heading, system and taxonomy within the framework of the systematic way। ओके, तो इससे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इसको OS काम करता है। ओके, SKOS और RDF क्या है? SKOS प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूजिंग द रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का यूज करके इसको क्या प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंट द नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट करता है। एनकोडिंग दिस इंफॉर्मेशन इन RDF अलाउज टू बी पास्ड बिटवीन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द इंटरऑपरेबिलिटी वे। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सभी प्रकार की चीज़ें वहाँ पर होती है, जैसे कि नेट का हम यूज करते हैं तो वहाँ पर भी क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, स्टैंडर्ड वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं और एक दूसरे को डेटा सेंड करते हैं। ओके, यूजिंग RDF also allow knowledge organization system to be used in distributed decentralized metadata application। तो इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, मेटाडेटा एप्लीकेशन यूज करते हैं। Decentralized metadata is becoming typical scenario where service providers want to add value to metadata invested from multiple sources। Status development, the SKOS specifications are currently published as recommendations, which meant that they are in stable state. See the SKOS also. You can get the more information from the net or internet regarding this. You can get detailed information about this,
कम्युनिटी इसमें कौन से आती है? ऑल SKOS related development work is now carried out via the public mailing list, which is completely open and publicly archive mailing list devoted to discussions for issues relating to knowledge organization system. तो बहुत सारे इसके ग्रुप्स है, ईमेल ग्रुप्स है, और इसके द्वारा इस पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल्स एंड सिस्टमैटिक वेब के द्वारा ये पार्टिसिपेशन यहाँ पर होता है। SKOS community wikis is also provided as support for discussing and exchanging database sets, tools, recipes to solve identified issues. तो बहुत सारे ऐसे सोशल वेब है, सोशल मीडियाज़ है, उस पर लोग एक्टिव रहते हैं, तो कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन वहाँ पर बढ़ता है। इन स्टेटस डेवलपमेंट क्या है? The SKOS specification are currently published as V3 recommendations, which means that they are in stable state. स्टेबल है, तो ये हमने देखा। ओनरशिप किसकी इसमें? इसको हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द V3C semantic web development working group that is called HWD, which WG was chartered to develop SKOS to V3C recommendation status. और इसमें कम्युनिटी कौन कौन से आते हैं? जैसे ग्रुप सिस्टम इसमें होता है, मेलिंग ग्रुप वगैरह, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट कौन होता है इसमें? इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आप इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन सर्च ऑन द गूगल आल्सो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टैक्सोनॉमी एंड फोक्सोनॉमी। ओके, so taxonomy and taxonomy are nothing but the classification system. Taxonomy is classification system in which end user apply public tag online items, typically to make those items easier for themselves or others to find later. Taxonomy मतलब क्या होता है? जैसे कि सोशल मीडिया होता है, नेट इंटरनेट वेब होता है, कई सारे प्लेटफॉर्म हम देखते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है और फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ओके, इंस्टाग्राम है। तो उसमें हम टैग सिस्टम का यूज करते, टैग का यूज करते। जब कोई फेसबुक पर पोस्ट डालता है तो उसका मैटर लिखने के बाद, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, वो नीचे टैग तैयार करता है और उससे फिर पोस्ट वायरल होता है, ट्रेंडिंग होता है। ओके, तो यह ट्रेंडिंग सोशल वायरल के लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने के लिए की जाती है। लेकिन जो पब्लिक टैग यूज होता है यूजर के द्वारा ऑनलाइन आइटम के लिए, तो फिर उसका फ़ायदा तो हमें होता है लेकिन दूसरों को भी होता है। इसलिए हर एक कोई जब पोस्ट डालता है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, तब हैशटैग करने की एक मेथड है, टैग फाइंड आउट करके वहाँ पर लिखने की एक मेथड होती है, ताकि उसके पीछे का पर्पज़ क्या होता है, वो जो पोस्ट है वायरल हो सके फास्ट और उसका ट्रेंड बन सके, ट्रेंड सोशल प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेंडिंग बन सके, ये उद्देश्य उसका होता है। इसके लिए हर एक कोई जब पोस्ट डालता है सोशल मीडिया पे या नेट पे, इंटरनेट पे, वेब पे, तो टैग वहाँ पर लिखता है पब्लिक। ओके, तो इसका फ़ायदा हमें होता है लेकिन औरों को भी होता है फाइंड आउट करने के लिए पोस्ट। वो टैग दिस कैन गिव राइज टू क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन दोज टैग एंड हाउ ऑफन दे आर अप्लाइड फॉर सर्च फॉर ऑन स्टार्ट एंड टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन डिजाइन बाय द ओनर्स ऑफ द कंटेंट। इस तरह से टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन डिजाइन किया जाता है
owner of content and specified when it is published. This practice is also known as a collaborative tagging, social classification, social indexing, social tagging. फोक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये कौन क्रिएट करता है? सोशल फोक्सोनॉमी। सोशल फोक्सोनॉमी ये जो होता है ओनर करता है, कंटेंट ऑफ ओनर, जैसे कि जो पोस्ट लिखता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर जब हम पोस्ट लिखते हैं ओके, तो वहाँ पर टैग हम खुद लिखते हैं ओके। और ये कौन लिखता है? कंटेंट ओनर लिखता है ओके। कौन प्रिपेयर करता है? कंटेंट ओनर या वेबसाइट डेवलपर ओके। तो इस तरह से जब हम गूगल पर कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो कीवर्ड और टैग के द्वारा करते हैं, ताकि वह हमें तुरंत प्राप्त होता है उसके बारे में। जब आपके फ़ोन में गूगल क्रोम होगा तो आप जब गूगल क्रोम ओपन करोगे तो हमें कुछ फाइंड आउट करने के पहले जब हम बॉक्स में क्लिक करते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है, किसी ने क्या क्या फाइंड आउट किया है ओके। सो ऑल दीज आर नथिंग बट द टैग विच आर रिफ्लेक्टेड ऑन द वेब। तो वेब पर रिफ्लेक्ट होती किसने वो टर्म किस नाम से फाइंड आउट की है ओके। तो बहुत सारे सर्च हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टैग सिस्टम के द्वारा पॉसिबल होता है। गूगल, देखो हम यहाँ पर केवल गूगल टाइप कर रहे हैं तो सारे नाम हमारे सामने आते हैं। ये जो नाम आते हैं तो ये टैग का ही परिणाम होता है, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे लोगों ने इसका सर्च किया होता है। इसलिए हम कुछ वर्ड वहाँ पे डालते हैं सर्च बॉक्स में तो हमें लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। तो गूगल में भी हम इस तरह का प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देखते हैं एआई डालते ही एआई के संबंधी जो जो टैग बने हुए हैं और जो औरों के द्वारा बने हुए हैं और उसके द्वारा सर्च किए गए वो सभी हमारे सामने आते हैं, रिफ्लेक्ट और सजेस्टेड और सजेशन करके ओके। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है एआई के संबंधी, ये सभी क्या है? टैग है, यानी कि कीवर्ड्स है which are used by someone else, दो दूसरों के द्वारा यूज होते हैं ओके। और फिर इसको ही हम क्या कहते हैं? फिर फोक्सोनॉमी कहते हैं। इसका उपयोग में क्लासिफिकेशन में होता है एज अ मेटा डेटा करके, क्योंकि उस वर्ड के द्वारा हम मेन इंफॉर्मेशन तक जाते हैं ओके। और मेन इंफॉर्मेशन यानी मेन सोर्स के पास जाते हैं, मेन सोर्स तक पहुंचते हैं और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं ओके। जैसे कि हमने यहाँ पर और दूसरा वर्ड डाल सकते हैं, यूनी शब्द डालते ही यूनिवर्सिटी ऑफ सभी आ जाते हैं। फिर पुणे डालते हैं हम तो यूनी पुणे से संबंधित यहाँ पर जो सर्च हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें कहाँ पर जाना है? ये एज मेटा डेटा का काम करता है टैगलाइन। हमें मेन सोर्स पे जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट वेबसाइट पे आते ही क्लिक करते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पर हम आते हैं ओके। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कैसे होता है, पोस्ट वायरल कैसे होती है, तो उसमें टैग का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारी पोस्ट यदि हमें वायरल करनी है तो सोशल मीडिया पे ऐसे कौन से टैग है जो वायरल हुए हैं और जिसके द्वारा सोशल ट्रेंडिंग चल रही है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? वायरल कर सकते हैं। उसकी मदद से वो टैग हमारे पोस्ट में डाल के हम वायरल कर सकते हैं, ऐसा होता है।
तो हमारी पोस्ट क्या होती है फिर गूगल के सीओ ओके सीओ इंजन की मदद से वो ऑप्टिमाइज होती है और फिर ऊपर आती है सबसे ऊपर। ओके कोई भी हमारी पोस्ट से रिलेटेड टैग हमने डाले हैं उससे रिलेटेड सर्च आउट करेगा तो हमारी पोस्ट पहले आएगी, नीचे सभी की पोस्ट होगी। तो इस तरह से पोस्ट वायरल करने के लिए यानी कि क्या, जब हम गूगल तो बहुत सारा समंदर है, लेकिन गूगल पे एक शब्द डालने से हमारी पोस्ट सबसे ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि किसी ने कोई प्रोग्राम रखा है और वहाँ पर टिकट फ्री बांटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी भीड़ में से हम आगे जाकर वो टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो हम हर तरीके से, हर प्रयास से आगे जाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है या हमारी पोस्ट वायरल करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे टैग का यूज करेंगे जो वायरल हुए हैं और जिसके द्वारा सोशल ट्रेंडिंग हुई है सोशल मीडिया पर, तो वो टैग हमारे पोस्ट में हम यूज करेंगे ताकि कोई उस टैग से संबंधित इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। भले ही हमारी पोस्ट उस टैग से रिलेटेड ना हो, लेकिन हमारी पोस्ट सबसे आगे आ सकती है ऊपर। ओके और फिर वो क्लिक भी कर दिया उसने हमारी पोस्ट पर, तो हमारा जो वेटेज है पोस्ट का वो बढ़ जाता है। ओके साइटेशन हमें मिल जाता है। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का उपयोग क्लासिफिकेशन के लिए होता है, मेटाडेटा करके होता है। So in this way we can discuss over the taxonomy. So taxonomy is nothing but the tagging system which is used for trending the post, trending the or viral the post, or sometime it will be used for finding the information, to retrieve the information from the web or categorization the data. Okay और it play role as a metadata. तो इतने सारे रोल्स टैक्सोनॉमी के द्वारा होते हैं। over time these can give rise to classification system based on those tags and how often they are applied for search, for contrast to taxonomic classification designed by the owners of the content and specified when it is published. This practice is also known as a collaborative tagging, social classification, social indexing, social tagging. तो इस सिस्टम को अलग और नाम दिए गए हैं जैसे कोलैबोरेटिव टैगिंग है, सोशल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, सोशल मीडिया क्लासिफिकेशन, सोशल इंडेक्सिंग, सोशल टैगिंग। ओके तो यहाँ पर सोशल ये शब्द जो है सोशल मीडिया करके यूज किया गया है, क्योंकि टैगिंग सिस्टम बेसिकली सोशल मीडिया पे ज़्यादा यूज होती है, जैसे कि फेसबुक हमने नाम लिया अभी, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो इस सभी वर्ड से रिलेटेड है। जैसे कि सोशल के बारे में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो सोशल मीडिया का अर्थ हमें यहाँ पर लेना है। टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली द रिजल्ट ऑफ पर्सनल फ्री टैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं हम, रिजल्ट ऑफ पर्सनल फ्री टैगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नेट पे जो एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं सदा, वे जब कोई भी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या वेब पे, वेबसाइट पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टैग पोस्ट करता है तो वहाँ पर टैग लिखा जाता है। और ये यूज़र और कंटेंट ओनर जब कोई पोस्ट करता है तो ये फ्री टैग वहाँ पर वो यूज करता है। इसके लिए उसे कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं और लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसका जो फ़ायदा है उसको तो होता ही है, लेकिन दूसरों को भी उसका फ़ायदा होता है। और वंस ओन रिट्रीवल्स, जब उसे वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ओन्स ओन रिट्रीवल्स मतलब
फेसबुक पे वो बहुत सारी पोस्ट डालता है, सपोज डेली वो 2 से 4 पोस्ट डालता होगा, लेकिन इतनी सारी पोस्ट उसके द्वारा डाली गई, लेकिन उसको पता ही नहीं कि कौन सी पोस्ट मैंने कहाँ पर डाली है और कब डाली है। तो फिर उसे वो पोस्ट फाइंड आउट करनी है, सर्च आउट करनी है, कैटेगराइज करनी है, क्लासीफाई करनी है। तो वो फिर क्या करेगा, जो टैग उसे रिमाइंडर होगा उस टैग के उस टैग के द्वारा वो पोस्ट वो फाइंड आउट करने का प्रयास करेगा, और वो टैग डाल के, वो कीवर्ड डाल के जब वो सर्च करेगा तो उस पोस्ट सबसे ऊपर आ सकती है। तो सर्च इंजन में भी सेम यही होता है। ओके, सपोज मुझे एआई के संबंध में आर्टिकल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक पे एआई कंटेंट ऐसा डालूँगा और फिर सर्च करूँगा तो सभी एआई कंटेंट के रिलेटेड जो पोस्ट है ऊपर आती है। गूगल में भी सेम ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए जो टैग यूज किए जाते हैं तो उसे फोक्सोनॉमी कहते हैं। बट ऑनलाइन शेयरिंग एंड इंटरेक्शन एक्सपांडेड इनटू कोलैबोरेटिव फॉर्म्स। सोशल टैगिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टैग्स in an open online environment where the tags of the others use are available to others। तो सोशल टैगिंग जो है ये कहाँ पर की जाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही टैगिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, वेब है, इंटरनेट है। ओके, और उस पर हम इसका यूज करते हैं। और ये टैग का उपयोग हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए होता है, लेकिन जब कोई दूसरा सेम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेगा तो उसके सामने वो सभी टैग आते हैं सजेशन करके। ओके, सो कोलैबोरेटिव टैगिंग इज ए टैगिंग परफॉर्म बाय ग्रुप्स ऑफ यूजर्स। तो इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव और कोलैबोरेशन बढ़ता है। एक दूसरे के टैग जो होते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और ये जो वर्क है कोलैबोरेशन में होता है। नंबर्स ऑफ यूजर्स एक्टिव ऑन द वेब साइमल्टेनियसली एंड दे आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग फ्रॉम द नेट एंड दे प्रिपेयर द tag there, and when we try to find out some information from the web on the same content, then it will be display the tag in front of us as suggestions. Whatever information you want to search from the web, from the internet, from the social media, which is related to your search or not, you can given the suggestion by the net there, and that is all system is called tagging system. Tagging system is nothing but the folksonomy. Okay, so this type folksonomy is commonly used in cooperative and collaborative project such as a research, content repository and social bookmarking। तो इस folksonomy का हमें कहाँ पर उपयोग होता है, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में होता है, रिसर्च फील्ड में होता है, रिपोजिटरी फील्ड में, सोशल बुक मार्किंग के लिए हमें इसका उपयोग होता है। ओके, फोक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय द थॉमस वॉन्डर वॉल इन 2004। ये हमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये वर्ड हमें अंडरलाइन करने या लिख लेने हैं, इसमें यूज होता है। और इस टर्म का उपयोग किसके द्वारा हुआ, थॉमस वॉन्डर वॉल in 2004 as a port Martineau of folk and taxonomy. Taxonomy became popular as a part of social software applications such as social bookmarking। लेकिन फोक्सोनॉमी कहाँ पर फेमस हुआ, सोशल सॉफ्टवेयर में, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग में जब हम उसका यूज करते हैं वहाँ पर, एंड फोटोग्राफ annotation that enable users to collectively classify it and find information via shared tag. Some websites include tag clouds as a way to visualize tag in folksonomy। Okay,
Folksonomy can be used for K-12 education, business, higher education, and more. Specifically, folksonomy may be implemented for social bookmarking, teacher resource, repository, e-learning system, collaborative learning, collaborative research, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचिंग्स। तो इन सभी बातों में फील्ड में फोक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है ऑनलाइन। विकिपीडिया इज ऑल्सो प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फोक्सोनॉमी। तो विकिपीडिया भी फोक्सोनॉमी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट सोर्सेस है। ओके, तो इस तरह से फोक्सोनॉमी का मतलब हमने यहाँ पर देखा। और टैक्सोनॉमी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फोक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी आर बोथ मेथड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड लेबल डेटा एंड डिजिटल कंटेंट ऑफन थ्रू टैग्स। तो दोनों भी, टैक्सोनॉमी भी और फोक्सोनॉमी भी, दोनों में क्या अंतर है देखते हैं। ऑर्गेनाइज एंड लेबल डेटा और मेटा डेटा एज मेटा डेटा। ओके, डेटा करके इसका यूज होता है डिजिटल कंटेंट थ्रू द टैग। वाइल दे बोथ ट्राई टू सॉल्व द सेम इशू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन टू देम। देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन टू इन हाउ दे डील विद दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस भी हमें दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंस। As introduction to taxonomy. Taxonomy means it is structured hierarchical way to sort information based on its shared characteristic. They are added by the person who generated the content. तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, स्ट्रक्चर हायरार्किकल वे से के बेस पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होती है जो जनरेटर ने और ओनर ने खुद क्रिएट किए होते हैं। The aim is to create an organized way of categorizing materials. तो इसमें जो कंटेंट होते हैं उसका उद्देश्य ऑर्गेनाइज वे कैटेगराइजेशन मटेरियल तैयार करना होता है। ऑफन सो दैट इंफॉर्मेशन इज इजी टू एक्सेस, दे आर ऑफन यूज टू ऑर्गेनाइज वेबसाइट और कंटेंट रिपोजिटरी। ओके, taxonomy come with some problem. One issue is that can time consuming and costly. Taxonomy क्या होता है, time consuming, costly होता है। It also often use language that familiar to a professional audience, but perhaps not so far and end users of product. There are also instances of when content owners don't use particularly accurate or informative tagging system. Sometimes the categorization method doesn't make much sense to users. Okay, तो कैटेगराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की वहाँ पर बात हो रही है, इसलिए इस टॉपिक के संबंधी क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ऑफलाइन क्लासिफिकेशन बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की, क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी कि क्या, और फिर कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी कि क्या। तो ठीक उसी तरह से ऑनलाइन क्लासिफिकेशन भी होता है जो वेब पे हमें दिखाई देता है, और वहाँ पर टैक्सोनॉमी और फोक्सोनॉमी ये दो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके जरिए हम इन दो कैनन के जरिए हम वहाँ पर क्लासिफिकेशन कर पाते हैं डेटा का। इट मे जस्ट टू complicated to understand easily. For instance, professional may think certain article is about artificial intelligence, but your users might really find it by looking for robots. तो टैक्सोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द AI से हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कुछ लोग रोबोट के नाम से फाइंड आउट करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का यहाँ पर मैच नहीं होता, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो ऑल ऑफ दिस कैन मेक टफ फॉर यूजर्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे
आर लुकिंग फॉर। कभी कभी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती है या प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब हम YouTube पर कोई वीडियो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर वीडियो नहीं मिलता, या प्रॉपर टैग लाइन हमें नहीं मिलती, या टैग नहीं मिलता। उसकी वजह से जो कंटेंट हमें चाहिए होता है वो प्रॉपरली नहीं मिलता और समय पर नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें YouTube पर और वेब यानी कि इंटरनेट पर वह कंटेंट जल्दी नहीं मिलता। इसमें कई बार हमारा पूरा दिन भी चला जाता है। ऐसा आपके बहुत बार हुआ होगा। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर आप जो फोक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी यूज़ कर रहे हैं, यानी टैगिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए कंटेंट, वो सूटेबल नहीं है शायद। इसीलिए आपको वो जो कंटेंट है रिलेटेड जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता है या रिट्रीव नहीं होता है। ऐसी प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी में जो प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पर दिए हैं। कभी कभार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंधित जो कंटेंट है AI, ये शॉर्ट फॉर्म से टैगिंग होते हैं, लेकिन रोबोट से नहीं। लेकिन जब हम रोबोट से इंफॉर्मेशन AI की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें AI की इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं मिलती थी। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यूजर के लिए। टैक्सोनॉमी और फोक्सोनॉमी में क्या फ़र्क है? टैक्सोनॉमी रेफर हायरार्किकल कैटेगराइजेशन in which relatively well defined class are nested under the product category। तो टैक्सोनॉमी फोक्सोनॉमी क्या फ़र्क होता है? हायरार्किकल कैटेगराइजेशन होता है। फोक्सोनॉमी एस्टेब्लिश कैटेगरी होती है, जैसे कि टैग कैटेगरी। ओके, तो विदाउट स्टिपुलेटिंग और नेसेसरीली डिराइविंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, पैरेंट चाइल्ड रिलेशंस अमंग डिफरेंट टैग्स। इस तरह से दोनों में एक डिफरेंस होने की वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि टैक्सोनॉमी कीवर्ड का जब हम यूज करते हैं तो हमें कई बार इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से टैक्सोनॉमी व्हाट एंड फोक्सोनॉमी व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ फ्यूचर ट्रेंड्स एंड डायरेक्शंस रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में फ्यूचर ट्रेंड कौन से हो गए? अभी तो AI का हम यूज कर रहे हैं। AI क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्लासिफिकेशन में हम AI का यूज कर सकते हैं। तो AI से संबंधित बहुत सारे ट्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च टेंड toward the development of formal theories to guide varieties of application. It should help the development of skills appropriate to the needs of knowledge organization. Further research in the field should work toward the following aspect. Classification should tend toward the expression of concept, subject, universe of subject. There should be the movement toward the unique representation of concept and their context. तो क्लासिफिकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रगति कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, और उसमें बहुत सारी कंसेप्ट इसमें आ सकती है, जैसे कि AI के द्वारा हम न्यू क्लासिफिकेशन थ्योरी भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, और जो सब्जेक्ट है, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है, उसकी जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग कंसेप्ट और कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। क्लासिफिकेशन सिस्टम शुड बी मेड compatible with the efficient communication of various interferences needed in situation, that it should be able to provide generic structures adding depth structures। क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के जेनेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उन्हें डेप्थ स्ट्रक्चर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके,
classification system should be have intellectual and subrogations, preciseness. Scheme should tend toward compactness and clarity, appropriate level of abstraction. इसलिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Different types of knowledge should be capable to be expressed with the same general representation scheme. Universal system should provide for atomized spatial system of subrogations. क्लासिफिकेशन जैसे मैन्युअली होता है, अलग अलग स्कीम डिफरेंट क्लासीफायर के द्वारा इन्वेंट की गई है, उस तरह से हमें फ्यूचर में एआई की मदद से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी जनरेट कर सकते हैं. सो classificatory language should reflect logical consistency. The neutral exclusiveness should be contextually separated and represented. तो यहाँ पर क्लासिफिकेटरी लैंग्वेज भी हम डेवलप कर सकते हैं लॉजिकली, और उसका उपयोग क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं. क्लासिफिकेटरी लैंग्वेज शुड बी एबल टू प्रोवाइड स्कीम फॉर मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज. तो क्लासिफिकेटरी लैंग्वेज डेवलप करके हम मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नॉलेज का, और इसी तरह देयर आर टॉप स्कोप in online age for the classification. So in this way we have discussed over the many topics regarding the offline classification as well as online classification. So today we will stop here, remaining part we will take tomorrow. Thank you.